42 से स्टार्ट करें। The percentage of copper and oxygen in a sample of CuO obtained by different method were found to be the same. They illustrate the law of constant proportion. कौन सा? Constant proportion. कांस्टेंट प्रोपोर्शन ला कि मल्टीपल वाला? Constant. क्यों कांस्टेंट वाला क्यों? क्योंकि दोनों का मास सेम है ना, परसेंटेज सेम है दोनों सही के। है, ए आएगा कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सही है, अगला देखें। अरे कैसे? The law of definite proportion was given by अरे ये तो John ये नहीं Dalton. आते वैसे तो। जॉन डाल्टन ने दिया था। नहीं, हम ऑप्शंस पढ़ रहे थे। सुना। Which one of the following pair of a compound illustrate the law of multiple इसका proportion? सी आएगा। प्राउस्ट ने दिया था। सी लगा दो। ये से आते नहीं वैसे क्वेश्चन। 42 दे। Which one of the following pair of a compound illustrate the law of multiple proportion? हाँ अब बताओ मल्टीपल प्रोपोर्शन। D. मल्टीपल में आता है ना वो। हाँ, डी वाला कैसे? मल्टीपल प्रोपोर्शन में है ना। देखो Cl के जो मॉलिक्यूल्स है जो एसेंशियल टू एसेंशियल 4। हाँ 2 है और उसका 4 मल्टीपल में। हाँ। अगला बोलो। Among the following pair of a compound, the one that illustrate the law of multiple proportion is CuO and Cu2O. हाँ डी। अगला बोलो। Two sample of a lead oxide were separately reduced to metallic lead by heating in the current of hydrogen. The weight of a lead from one oxide was half the weight of a lead obtained from the other oxide. The data illustrate law of constant proportion. कांस्टेंट का हाँ है। Equivalent proportion. इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन की लॉ है का मल्टीपल प्रोपोर्शन आएगा। आगे बढ़ते। In a compound A, 1 gram of nitrogen 47 ना? units with हाँ ठीक। 0.57 gram of oxygen. In compound B, 2 gram of nitrogen combined with a 2.24 gram of oxygen. In compound C, 3 gram of nitrogen combined with 5.11 gram of oxygen. These results obey the following law. अब बोलो। ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूनिट्स देखना अब उनके पहले कांस्टेंट देखो। तुम्हें कांस्टेंट तो कुछ है ही नहीं है। मल्टीपल मल्टीपल में आ रहा है तो देखो जरा। एक के डबल फिर उसका डबल ट्रिपल हो जाएगा। हाँ ये मल्टीपल है क्योंकि है ना? नाइट्रोजन 0.5 का एक हो रहा हाँ। है ना। पहले मतलब 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन यूनिट्स विथ 0.57 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड वाले में 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। मतलब ये मल्टीपल ही होगा ना क्योंकि हाँ, बढ़ते जा बढ़ रहे रहा हैं है इसके ना। मोल। बी नंबर का है। अगला देखो। Which one of the following statement indicate the law of multiple proportion is being followed? Sample of carbon dioxide taken from any source will always have a carbon and oxygen in the ratio of 1:2. Carbon form two oxide, namely CO2 and CO, where हाँ ये तो है मल्टीपल प्रोपोर्शन mass है ना। CO डाउन एग्जाम्पल देखे। multiple proportion. 49। The molecular weight of O2 and SO2 are 32 and 64 respectively at 15 degrees Celsius and 150 mfg pressure. 1 liter of O2 contain n molecules. The number of molecules in 2 liter of SO2 under the same condition, temperature and pressure will be 1 लीटर में 1 मोल तो 2 लीटर में 2 moles. क्या होता है? n molecules पूछे ना। molecules in 2 liter of SO2. 2 लीटर मतलब मामा लीटर वाला 2.4 वाला लगेगा ना। वॉल्यूम अपॉन 2.4 इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 1 लीटर में n मॉलिक्यूल तो 2 लीटर में 2n। वो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मोल होते हैं। नेक्स्ट देखते 50 देखो। 10 dm cube of N2 gas and 10 dm cube of gas X at the same temperature contain the same number of molecule. The gas X is कौन सी होगी? N2 गैस H2 होगी। H2 क्यों होगी? H2 देखो जब वो NH3 बनता है ना
N2 प्लस H2 NH3 बनता है, उसमें रहता है ऐसा। वो क्या कह रहा है N2 के? देखो 10 dm cube of N2 gas and 10 dm cube of gas X at the same temperature contain the same number of molecule, the gas X will be। अच्छा, इसमें क्या है, वॉल्यूम सेम है दोनों गैस का? नहीं, DMQ हाँ वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम है ना? हाँ अगर वॉल्यूम सेम है हाँ, तो उसके मोल सेम होंगे। मोल सेम होंगे, मोल सेम है तो उसका वेट सेम वेट होगा। सेम होगा। N2 वेट वाली कौन लग रही? N2 के वेट वाली लग रही है N2 मुझे 14 कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ओके, 1 mole of a gas occupy a volume of 2.4 liter. This is derived from Brazilus hypothesis। क्या? 1 mole of a gas occupy a volume of 2.4 liter. This is derived from ये कहाँ से आया था? ये आया था एवोगैड्रो लॉ से, इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मोल। सी देख one of के the following combination which illustrate the law of reciprocal proportion। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ये पढ़ा है अपन ने। अच्छा अच्छा, मतलब उसकी रेसिप्रोकल इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मोल, इसका रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। सी आएगा इसका। ये सब तो मल्टीपल प्रपोर्शन वाले थे। सी वाला इसको देख लेना अच्छे से, याद नहीं। CH2 CO2 and SO, ठीक। Equal volume of a two gas A and B are kept in a container at the same temperature and pressure। Avogadro law is invalid if the gas are reactive, the gas are non-reactive। Gas A has a more number of molecules than gas B। ये नहीं, कोई नहीं लग रहा मुझे इसमें से। डी। सही। Molecular mass is defined as a mass of a one atom compared with the mass of molecule। Mass of one molecular mass of one atom compared to the mass of one atom of hydrogen। जी 12 वाला है, कार्बन 12 वाला। सही। 1 AMU is equals to, ये है 1.66 into 10⁻²। नहीं नहीं, ये नहीं है। 1/12 of कार्बन 12। The modern atomic weight scale is based on carbon 12। The percentage weight of zinc in a white vitriol ZnSO4 7H2O is approximately equals to 65:32। ये निकालना पड़ेगा। जिंक का वेट भी रहा है उसमें, ZnSO4 जिंक का 60, मतलब वेट तो नहीं दिया है। ZnSO4 दूसरा वो देखो ना लाइन, इससे लिखो ZnSO4.7H2। इसमें जिंक का वेट कैसे, टोटल वेट और जिंक का वेट उसको से डिवाइड कर देना है ना, तो उसका परसेंट निकाल जाएगा इंटू 100। हाँ, यही तो जिंक करेंगे का 64 है ना। 65 आया है हाँ। जिंक का, और उसका टोटल वेट 287 आएगा। 287 इंटू 100 कर अरे ऊपर जिंक का लिखो ना, नीचे 287 लिखना, इंटू 100 कर दोगे तो ये 22.4 के समथिंग कुछ आएगा। है ना। 287 आएगा टोटल। 287 इंटू 100 इंटू 100 कर दो बस, आंसर आ जाएगा। अब देखो 100 में 22 आएगा, 22 पॉइंट समथिंग कुछ, 22.65। ये सब रफ कैलकुलेशन करनी पड़ती। मिटाओ मत इसको।
आगे बढ़े। इधर साइड में लिख दे रही मैं छोटे में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे The बढ़ो। average atomic mass of a neon based on the following data is relative abundance on isotopes. एवरेज एटॉमिक मास हम नियॉन पूछा है ना, कितना है नियॉन का 20 होता है ना, लिख दो 20 एवरेज एटॉमिक मास, बी नंबर है। ज़्यादा दिमाग कहीं लगाना फालतू। रिलेटिव अबंडेंस निकालते ना, लेकिन इसको अगला देखो। अगला है 59. What is the average atomic mass of a bromine from the following data? तो ये एवरेज 79. किसका 59 का? हाँ 79 आ रहा। हाँ 79.9। हाँ ना, वही तो मतलब। ठीक है, नेक्स्ट देखो। What is the mass of an atom of oxygen? What is the mass of an atom of oxygen in a gram? ग्राम ग्राम में क्या होता है? वो तो एएमयू में निकला था, अपने ग्राम में निकालना है, समझ गई ना बात को? हाँ हाँ ठीक है, सो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 पॉइंट कुछ का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए 9 आएगा, पूरे ए बनेंगे। बन जाएगा ना। हाँ हाँ ठीक है। इफ द मास ऑफ वन एटम इज फाउंड टू बी 2.32478 into 10⁻⁻23 ग्राम, देन दिस एटम कैन बी, मैं बता रही ना, ये है ना होगा ऑक्सीजन से नीचे वाला, मतलब ये नाइट्रोजन होगा। इसमें ग्राम में दिया है ना, इसको पहले एएमयू में बदलो। नहीं तो अभी अपन ऊपर जो क्वेश्चन किया ना उसमें ऑक्सीजन दिया था, ऑक्सीजन का कितना था 2.656, तो ये इससे पहले वाला होगा। जुगाड़ नहीं लगाने से 1.67 से 6.7 10 से डिवाइड कर दो उसको, जितना है इसके नीचे डिवाइडेड बाय डिवाइड कर दो। 1 पॉइंट, अरे यार पॉइंट नहीं लगता, 1.67 into 10⁻⁻19। अरे 24 ग्राम, क्या 19 कर रहे हैं, 4 जगह होगी क्या? 14 आएगा, 14 नाइट्रोजन। मैंने बोला था ना, जुगाड़ वाला काम ये चल जाता है। व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO? ये तो बन जाएगा। CO का कार्बन है और फिर ऑक्सीजन है, कार्बन का तो वही होगा, फिर ऑक्सीजन का भी निकाला था 2 पॉइंट कुछ, तो ये 1.67 into 10⁻⁻² प्लस 2 पॉइंट, तो ये आएगा 37 पॉइंट, मतलब 3.732 4.65। 4.65 आएगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ STP ऑक्यूपाइड बाय 240 ग्राम ऑफ SO2। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो ये 27 जल्दी हलो। ग्राम में है ये। वॉल्यूम बदलना है तो अपन 2.4 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाय लिखते भी तो 2.4 2 1 जा कर लो। 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, मुझसे ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेशन नहीं आती है। 2 1 जा 0 जा 84 लीटर। 4 लीटर। रफ कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। नियरेस्ट टू एट STP द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर इन ग्राम पर लीटर विल बी नियरेस्ट। CCl4 दिया है, मास अपॉन पहले वन मोल की Molecular निकालो, फिर बाद में mass बात खत्म हो जाए। मास ऑफ CCl4 का मास लगाएंगे तो ये देखो, जैसे इसका रहता है 35.5 Cl का है, इंटू 4 प्लस कार्बन का 12 इक्वल्स टू ये 12 और ये 140 हो जाएगा, है ना? 140 नहीं होगा,
बाई 154 154 हो जाएगा 154 प्लस करेंगे टोटल जब ना। मास होगा ना उसका 154। ठीक है 154 है और डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम वॉल्यूम कर कितना है? देंगे एसटी वॉल्यूम कितना हो? 22.4 22.4 लीटर 154 अपॉन 4 22.4 ये आएगा 6.8 के समथिंग आ जाएगा 6.87. The number of gram molecules of oxygen is 6.02 into 10 to the power 24. Carbon monoxide molecule is molecules दिए हैं. The number of a gram molecule of बी oxygen. नंबर का आएगा आँख बंद कर। कैसे लेकिन? अरे The number of oxygen atom in 4.4 gram of CO2 is ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एटम के लिए लगेंगे एटम इंटू मॉलिक्यूलर नहीं एटम्स इंटू मोल्स इंटू जितने मतलब O2 के नीचे 2 लगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वही वाला कर देंगे तो मतलब ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 16। पहले मोल निकालो। ठीक है 0.1 यही निकलेगा ना 4.4 अपन 44 0.1 निकला 0.1 ये मोल निकलेगा ना। हाँ मोल्स। अब इनका मल्टीप्लाई 2 से कर दो 2 से कर देंगे तो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ग्राम निकाल। अरे इनका मल्टीप्लाई एन से करेंगे अरे यार मोल इंटू एन इंटू एटमिसिटी वही तो रहती है। एटमिसिटी 2 रहेगी क्योंकि मोल इंटू ये मोल साइड में नहीं लिख पा रहा है इंटू एन इंटू एटमिसिटी मोल कितने 0.1 0.1 इंटू एन मतलब एवोगाड्रो नंबर और एटमिसिटी 2 है बस हो तो गया। मतलब 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे जब अपन 6.02 में तो 12 के समथिंग आएगा। यार 12 हाँ 12 की समथिंग आया 1.2 आ रहा है यार 12 नहीं ए नंबर वाला 66 ए which has maximum number of a molecule 7 gram of N2 2 gram of H2 16 gram of O2 16 कैंसिल हो जाएंगे और H2 का 1 सबके मोल निकाल दो। वही मैं कर रही हूँ ये 16 और ये N2 का हो जाएगा मतलब इसके तो कम ही रहेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है इसके तो कम रहेंगे इसके भी कम ही नीचे वाला रहेंगे। ज्यादा मतलब आएगा मामा हमें ये 1 आ रहा है ये 1 ही है बी नंबर का। हाँ सही क्योंकि हाइड्रोजन का 1 रहता है और 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा 2 मोल्स आएंगे 2 मोल्स सबसे ज्यादा आएंगे ऑक्सीजन का। नेक्स्ट करो नंबर ऑफ एटम्स इन 558.5 ग्राम ऑफ Fe एट इससे डिवाइड कर देंगे ना इसकी 5.5 ए नंबर आ जाए 8.5 अपॉन 55.85। इसके बहुत अच्छे ट्रिक की वो रहते हैं फॉर्मूले जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। ए नंबर लगाओ फटाफट। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 60 ग्राम ऑफ मीथेन इज ये तो बन जाएगा ना 16 16 मतलब 16 एक मतलब 16 उसका नंबर इंटू कर देना 12 16 पहले 16 ही 16 आ जाएंगे मामा तो 1 आ जाएगी 16 अपॉन 16 बात आएगा ना उसके मॉलिक्यूल के लिए एवोगाड्रो नंबर से इंटू कर देना तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही तो आएंगे। हाँ कौन सा सी द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम ऑफ Na2SO4.10H2O इज 32 ग्राम ऑफ Na2। इसका वो याद रखना पड़ेगा अपन को मोल निकालना है पूरा इसका मास रखना पड़ेगा 32.2 अपॉन कितने निकलेंगे यार 322 होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट इसका पूरे का। हाँ 0.1 आ जाएगा बस तो अरे यार नहीं नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पूछा है मामा ऑक्सीजन कितने ग्राम है तो ये अपन ने ये क्या निकाला है 0.1 उसके मोल निकाले है। अब 0.1 ये मोल हो गए इसके ऑक्सीजन कितने हैं 4 और ये 10 14 हैं 224 ग्राम। हाँ सही आएगा वो नहीं सी नंबर का आएगा
मतलब इसमें तो सॉल्व करना पड़ेगा बहुत। उसका ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपके देखो 10 प्लस वो 4 तो 14 हो जाएंगे वो, है ना। 14 द नंबर ऑफ नेक्स्ट करो, moles इसको of आगे के लिए oxygen in छोड़ दो। 1 liter of air containing 21% of oxygen by volume under the standard 5 मिनट। standard conditions are। इसमें अपन को मोल्स निकालने हैं, तो ऑक्सीजन 21 ग्राम दिया है, तो मतलब 21 ग्राम इक्वल्स टू हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 100 इंटू डिवाइडेड बाय 100। अरे यार उधर साइड में तो लिखता ही नहीं है। 21% है ना, 0.21 लीटर का। देखो जैसे 21 है अपॉन 100 से डिवाइड कर देंगे। कंटेन स्टैंडर्ड कंडीशन में 2.4 होता है वॉल्यूम। हाँ तो 2.4 से डिवाइड करते हैं ना, तो इसके मोल्स तो निकल आए। मोल ही तो निकलेंगे उसके। 21 अपॉन 100 इंटू ये 0.21 अपॉन 224 और डिवाइडेड बाय 2.4। बस ये निकलेगा यार। ये लगभग आ जाना चाहिए 71 का आएगा। 0.0 ए नंबर ए। The number of molecules in 8.96 liter of a gas at 0 degree Celsius and 1 atm pressure is approximately the number of molecules in 8.96 liter of a gas 0 degree Celsius and 1 atomic pressure is approximately equals to 24। वन एटीएम। मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब बताओ। मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल ये तो रटा रटा है क्वेश्चन है। बी नंबर का आएगा 18 को एवोगैड्रो नंबर डिवाइड कर दो और क्या। एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड ग्राम में बदलनी है ना अपने। ग्राम में बदलने तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड नहीं करते, उससे वो मल्टीप्लाई करते AMU से। 1 मॉलिक्यूल का पूछा है ना भाई। अच्छा मास, ठीक। एक मॉलिक्यूल का मास 1/6.02 10 की पावर 23, तो 18 मॉलिक्यूल कितना होगा, इनटू हो जाएगा ना 18। 1 moles of CO2 contain 8.23 of CO2 after 6.0 ये वाला होगा मामा। क्या 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 डी कि सी। डी, क्योंकि कार्बन की एटमॉसिटी 1 है। आगे बढ़ो। Volume of a gas at NTP is 1.12 into 10 to the power minus 7 centimeter cube. The number of molecules in it is वॉल्यूम दिया ही है 22.4 लीटर। डिवाइड करो और निकालो, मोल खत्म करो। इसको डिवाइड करो 2 इसमें ml में जैसे दिया है। मामा ये वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया ना। हाँ तो इसके मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स जो आएंगे फिर उसमें अपन 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। कितना करना पड़ेगा 3.101 10 की पावर 12 बार। ये तो सेम है मामा, देखो अप्रॉक्स में सेम है। हाउ मैनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज। ये तो पता है। सुक्रोज 1 मोल ऑफ सुक्रोज में कितने मोल्स होते हैं? 1 मोल्स ऑफ सुक्रोज में कितने एटम होते हैं? 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एक मोल में मॉलिक्यूल बदलोगे तो किसका इंटू करेंगे? नहीं एटम। पहले मोल को मॉलिक्यूल में बदलो, फिर मॉलिक्यूल को एटम में बदलो।
1 मोल को 6.022 इंटू 10 एक रेशो बार 23 23 हो ये जाएगा, मॉलिक्यूल में ठीक है, बदल ये गया, अब मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी हो से इंटू जाएगा। कर एटम 12 प्लस 45 45 होगा इसका, ठीक है। 45 इंटू 6.022 इंटू 10 रेशो 23 ये हुआ। इसका बी आ रहा। हाँ, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस एट STP विल वेट 22.4। ए 77 ना, हाँ, ए आ रहा, क्यों ग्राम पूछे हैं। ए नंबर आएगा। 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 लीटर दिया है अपॉन, तो वेट पूछा है, तो ये इसका पूरे सॉल्व करके दिखा देते ना, है ना। 32 को देखो 2.4 से 1 डिवाइड कर लीटर दो, इंटू 1 कर दो। हाँ, इसमें कितना दिया है, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन 1 अपॉन 2.4 इंटू 32 इंटू 32 ये 1.43 आ रहा, इक्वल्स 1.4। टू आ जाएगा 1.43। ये भी फॉर्मूलेज रहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ 0.5 मोलर NaOH इज मोलर 0.5 मोलर है, 2 लीटर दिया है। O2 and N2 are present in a ratio of 1:4 by weight. The ratio of number of molecules in it 1:4, क्योंकि दोनों में 6.022 इंटू 10 नहीं, अच्छा वेट दिए हैं। वेट से करो, ठीक है, वेट है N2 का 1:4। 4 का मतलब 1 7 और 1 32, 7 चौक 32। वेट दिया है तो उसको अपन को वो क्या बोलते हैं, मोल्स में बदलना पड़ेगा, फिर निकलेंगे मॉलिक्यूल्स। वेट करे सो ये तो आएगा, NO2 होगा वो, ऑक्सीजन 32 और नाइट्रोजन 1, तब तो है, तब तो 1:4 का रेसो है, नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 32। The ratio of number of molecules is how many, मामा लेकिन ये तो O2 और N2 अलग अलग दिया था। हाँ तो वो रिएक्ट करेंगे ना, रिएक्ट उसका करने रेसो बताना किस how कंबाइन में many करेंगे। moles 2SO4 whole thrice would be in 50 gram of a substance, 50 ग्राम अपॉन इसका कितना रहता है 342 342। आ गया, कुत्ता है, 0.14 आ रहा, ठीक।